So we discussed about the chemical effects of electric current. Chemical effect में हमने ये कहा है कि जो आपका electric current है, see, it is going to produce three types of effect. The heating effect, where the substance it gets heated up. तो आप जो rods use करते हो, electrodes हो गई हैं, ठीक है? जो hot iron की rods आप घर में use करते हो, heaters हो गए, वो सारे जो हैं वो किस पे effect पे based है? Heating effect पे. Bulb जो है वो glow करता है. Coming to the next is the magnetic effect, where there is production of the magnetism due to the flow of the current. तो हमने electromagnets जो थे वो generate किए थे, right? Now the third effect is the chemical effect. Chemical effect of electric current में there will be some type of chemical reaction that will be going on. Okay, so in the chemical effect of electric current, there will be some type of reaction that will be going on due to the passage of the current. तो जब आप किसी चीज में से इलेक्ट्रिक पास करोगे तो वो कोई ना कोई चेंज, केमिकल चेंज जो है वो रिप्रेजेंट करेगा. ओके, नाउ सिंस दिस टाइप ऑफ चेंज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट. ओके, सो वी टर्म दिस एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Now you know that the current is produced due to the passage of the electrons. ठीक है, तो whenever there is movement of the electrons, it give rise to the current. तो आपका इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में करंट जो है वो क्यों फ्लो करता है या कैसे फ्लो करता है? It is due to the passage of these electrons. The movement of these electrons, they give rise to the current. And if we want to see whether the substance can conduct or not, उसमें से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कल हमने एक टेस्टर जो था वो देखा, जिसमें टेस्टर में वी आर हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, राइट, बल्ब, कनेक्टिंग वायर्स एंड हेयर यू कैन प्लेस योर सब्सटेंस. तो जो सब्सटेंस आपने टेस्ट करनी है, जिस सब्सटेंस को आपने चेक करना है, आप उस सब्सटेंस को यहाँ पर इन पोजीशंस के बीच में लगा सकते हो. ओके, नाउ हेयर is a simple arrangement in which we can see whether the substance is conducting or not. So you can see here, this is a bulb. Okay, so this is a substance that I have placed here. It actually works on the principle of sensor. तो ये थोड़ा सा conducting भी है plus sensor के ऊपर भी work करता है, तो ये उसका combination है. Here is a battery with me. Okay, तो इस बैटरी को जब मैं कनेक्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी आप देख सकते हो ये सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट है, right? This circuit is incomplete right now क्योंकि जो ends हैं वो open हैं. So let us close these ends and let us see whether the bulb it glows or not. So see beta, when I am going to complete this circuit, I am going to close this circuit. Okay, I have attached it with the battery, right? So can you see the bulb? It starts glowing. That means the substance here is a conducting one. Okay, तो जो मैंने substance use की है वो conducting है. It can conduct the current through it and we can see that through the bulb. Okay, तो जो आपका bulb glow कर गया है वो क्या symbolize कर रहा है कि जो आपकी substance है उसके बीच में electric current जो है वो flow कर रहा है. Okay, it works with the sensor. ओके, जब आप क्लैप करते हो तो जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, जब आप दोबारा करोगे तो वो बंद हो जाएगा. ओके, सो स्विच की जगह यहाँ पे हमने एक सेंसर फिट किया हुआ है, स्विच से ऑन ऑफ की बजाय. ओके, वी विल बी यूजिंग अ सेंसर हियर आल्सो. So as I told you also, don't connect the free ends of the substance, right, to the battery for more than seconds. ठीक है, तो ज्यादा टाइम के लिए आपने जो अपने फ्री एंड्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, उनको कनेक्ट नहीं करना है while you are testing. ओके, तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो आपकी बैटरी है या सेल्स हैं, दे माइट बी यूज्ड अप वेरी वेरी क्विकली. जब आप उसको ज्वाइन करके रखते हो तो जो आपके सेल्स या बैटरीज हैं वो ड्रेन ऑफ होनी शुरू हो जाती हैं, उसमें से जो केमिकल्स हैं, ठीक है, तो वो यूज्ड होने शुरू हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज, सी, अब मैंने आपको यहाँ पर एक बल्ब दिखाया, राइट, फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट आई शो यू अ बल्ब. नाउ व्हाट इफ आई नो माय टेस्टर इज कंडक्टिंग. ठीक है,
मुझे पता है कि जो मेरा टेस्टर का अरेंजमेंट है, जो मैंने टेस्टर में अरेंजमेंट लिया है, द बल्ब, द बैटरी, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स, ये जो मेरा टेस्टर का अरेंजमेंट है ये वर्क कर रहा है, ओके, बट द बल्ब इज नॉट एक्चुअली ग्लोइंग एट दैट टाइम। बट वो मेरा बल्ब जो है, जो मैंने फिट किया हुआ है, ठीक है, द बल्ब दैट आई हैव यूज्ड हियर, इट इज नॉट ग्लोइंग। सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस कि जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा? यस, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन कि आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा? इवन इफ आई नो माई टेस्टर इज वर्किंग, कल हमने किया था कि अगर मेरा टेस्टर काम नहीं कर रहा तो उसके क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, कि कनेक्शन लूज हो सकते हैं, सेल यूज्ड अप हो सकते हैं, ठीक है, दैट थिंग वी हैव डन। बट नाउ माय क्वेश्चन इज कि मुझे पता है मेरा टेस्टर काम कर रहा है, बट स्टिल दैट बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, ओके, सो द रीजन कैन बी अ वेरी वीक करंट, a very weak current, it should be flowing through the circuit. तो आपके सर्किट में ऐसा हो सकता है कि बहुत ही वीक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, जो उस बल्ब को ग्लो नहीं कर पा रहा, ओके, इज दिस क्लियर बेटा? जो आपका बल्ब है that is glowing due to the heating effect of the current. Now what if your current which is actually passing through the circuit is too weak that it is not able to produce that heating effect, so the bulb it doesn't glow, right? So in that case we will be using a very sensitive detector. Now in this case तो हम यहाँ पर एक सेंसिटिव डिटेक्टर जो है वो यूज करते हैं, दैट वी कॉल्ड एज एलईडी। यू ऑल हैव हर्ड दिस थिंग, एलईडी सुनी हुई है आप सबने, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड, okay, now this is something which can actually sense a very weak amount of current that actually flows through your circuit, ठीक है। तो अगर आपके सर्किट में बहुत कम करंट भी फ्लो कर रहा है तो एलईडीज जो हैं, ओके, दे विल बी ग्लोइंग द बल्ब, दे विल बी गिविंग यू द करंट दैट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द सर्किट, ओके। तो वो आपको हिंट दे देते हैं या वो आपको शो कर देते हैं, यहाँ पर जो बल्ब्स हैं वो ग्लो कर जाते हैं। Now you all have seen LEDs, yes, जो आपके रिटेल स्टोर्स होते हैं, ठीक है, ब्रिजेस के ऊपर, स्टेजेस पे, इवन इन दी कीपैड्स ऑफ द मोबाइल फोन्स, देयर इज एलईडी दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो ये लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं दैट आर एक्चुअली यूज्ड इन प्लेस ऑफ द बल्ब। तो बल्ब की जगह अगर आपके सर्किट में बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, then we can use some of the sensitive devices like LEDs, and we can also use magnetic compass. They are also sensitive to the flow of the current. Okay, तो आप मैग्नेटिक कंपास भी जो है वो यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एलईडी, एलईडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले तो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, हियर आई एम हैविंग अ सेल, ओके, सो सेल है आपका जो आप नॉर्मली ड्रॉ करते हो, ठीक है। सेल का एक टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, हियर आई विल बी कनेक्टिंग द सेकंड टर्मिनल। तो यहाँ पर आपने वो सब्सटेंस रख देनी है जिसमें आपने चेक करना है वेदर द सब्सटेंस इज कंडक्टिंग और नॉट, ओके, क्लियर बेटा? नाउ हियर थोड़ा नीचे करके बनाते हैं, so this is connected to the substance,
right? This is the positive terminal, let it be. So here on the second terminal, I'll be connecting it with an LED. So LED कुछ ऐसी आपकी bulbs की form आती है, if you have seen. Okay, so here I'll be connecting one end, okay, and here it will be having the second end. तो यहाँ पर second end जो है वो दूसरे के साथ हमने यहाँ पर connect कर देना है, like this. Okay, so this is how the arrangement in the LEDs will be there. Okay, so can you see now here the one lid? ये LED का bulb है. This is the bulb part that will glow. These are the leads or wire. तो ये दो इसकी lead या wires हैं. जहां पर ये shorter one, it is connected always to the negative terminal of the cell or battery. Okay, and the second one that is actually longer in the length. ठीक है, जो दूसरी है आप देख सकते हो that is slightly longer. तो ये जो बड़ी वाली है जो ज्यादा लंबी है, ठीक है, that is always connected to the positive terminal of the cell. Okay, तो ये दो लीड्स हैं आपकी, इनको वायर्स भी कहते हैं, you can call them as wires or leads. So two leads are there, right? The one is short and the one is long. The longer one, it is always connected to the positive terminal of the cell or the battery, and the shorter one is always connected to the negative terminal of the cell or battery. In the similar way, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हम यहाँ पर कंपास नीडल जो है वो भी लगा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, right? So you should be taking a compass needle here, which is going to show the deflection. So like this you can take. Okay, again you have to connect it with the two ends. Right here we can connect it with the cell or battery. तो वैसे ही आपने इसको सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना. Okay, so जो उसके अंदर कंपास नीडल होगी that will be showing you the deflection. So in this way we can actually see whether the current, a very weak current is flowing through the circuit or not. Okay, तो ये circuit LEDs या magnetic compass, they can actually work when the current, when there is very low voltage and a very weak amount of current, it actually flows through the circuit. Okay, तो उस केस में magnetic compass के केस में क्या हो जाएगी, deflection show करेगा वो when a very weak current is there, and here the LED bulb it will glow, right? And you know, in today's time the application, the use of LEDs, it is being increased. ठीक है, तो क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत जगह आप यूज कर सकते हो इनको, लाइक आई टोल्ड यू, यू कैन यूज देम. जो आपके फोन्स आते हैं, ठीक है, कीपैड्स, उनमें भी ये यूज होते हैं, मोबाइल फोन्स, राइट? तो स्टोर्स हैं जो वहां पर भी एलईडीज के जो ये बल्ब्स हैं ये यूज होते हैं, स्टेजेस में, ब्रिजेस में. सो इन ऑल दीज थिंग्स यू मेनली यूज एलईडीज बल्ब नाउ. Okay, they are good source of light and they are more preferred as compared to the fluorescent tube bulbs. Okay, fluorescent bulbs से ज़्यादा जो है वो क्या beneficial हैं, because the fluorescent bulbs they actually consume more energy. Okay, और ये कम एनर्जी लेते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर तक आप इनको यूज कर सकते हो. Okay, but the main thing is that the LED bulbs they are bit expensive. बस ये है इनका कि थोड़े expensive होते हैं, otherwise their time, their duration, or you can say they are long lasting, right? Even weak currents भी जो है वो detect कर लेते हैं as compared to the fluorescents, but they are bit expensive. But जैसे जैसे चीजों का use बढ़ता जाता है तो you know they will be becoming cheaper and cheaper. Okay, right? So this is all about the tester, how we are going to test our experiment, or test our things whether they are conducting or not. ठीक है, now we will be moving to the main of this chapter, that is the chemical effects now. तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हम अपने करंट को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, या कैसे कैसे हमें टेस्टर्स जो हैं वो चाहिए. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी.
Next is electrical conductivity. See, there are many substances that can conduct the electricity through them. पढ़ी है हमने, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। जिन चीजों में से जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर जाता है, we call them as electrical conductors. Okay, so it is actually the electrical conductivity, it is actually a measure of ability ठीक है। हम किसी चीज की एबिलिटी चेक कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस की। इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो सेम हम यहाँ पर कंडक्टर्स की ही डेफिनेशन को ले रहे हैं कि कोई सब्सटेंस कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करवा सकता है अपने थ्रू, तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। ओके, नाउ हियर वी आर चेकिंग एक्चुअली द एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या है कि मेरे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन सी सब्सटेंस जो है वो ज्यादा करंट फ्लो करती है और कौन सी सब्सटेंस जो है वो कम करंट फ्लो करती है। अब ले तो मैं यहाँ पर सारे ही कंडक्टर्स रही हूँ, बट दैट इज नॉट स्पेसिफिक कि सारे कंडक्टर जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करवाएंगे। नो, ओके, राइट। सो इन दिस कंटेक्स्ट वी विल बी यूजिंग टू टर्म्स, गुड कंडक्टर्स and poor conductors. किसी चीज की ability to conduct the current, it can be differentiated in terms of poor conductors and in terms of good conductors. Good का मतलब अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करवा सकता है। पुअर का मतलब करंट कम करवा रहा है। ओके, सो जो चीजें अपने में से कम करंट को फ्लो करवाएंगी, ठीक है, दे विल बी कॉल्ड एज पुअर कंडक्टर्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? सो हेयर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एयर। हम एयर के एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक बल्ब है। ओके, सो हेयर आई हैव कनेक्टेड दैट टू द बैटरी, और यहाँ पर जो मैंने दो फ्री एंड्स हैं वो ऐसे ही रखे हुए हैं, A and B. Now if they are not joined, see, if these two ends they are not joined, then that means the air is through them. इनके बीच में एयर तो है ही, right? Through these two ends the air can easily flow. इसका मतलब क्या है कि अगर एयर कंडक्टिंग होती तो बल्ब जो था वो ग्लो कर जाना था, बट यहाँ पर जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं किया, even though the two ends they are free and air can easily pass through them. ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एयर जो है that is poor conductor. एयर that is poor conductor, नहीं कंडक्ट करवाई। ठीक है, अब similarly I can take the example of the lightning. Whenever there is electric spark in the air, in the atmosphere, तो वो आपको नजर आती है in the form of lightning. आती है बेटा? Can you see the lightning? तो वो किस में नजर आती है आपको? एयर में ही तो है, that is present in the air. तो that means जब lightning का फिनोमिना होता है तो उस पॉइंट पे जो आपकी एयर है फिर तो वो कंडक्टिंग हो गई। Are you getting the point? सेम चीज ले रही हूँ, द मटीरियल इज सेम, एयर। अब मैं आपको एग्जांपल्स देके ये बता रही हूँ कि कब आपकी सब्सटेंस जो है वो गुड कंडक्टर मानी जाती है, कब जो है वो पुअर कंडक्टर मानी जाती है। ओके, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ एयर, एयर इज अ पुअर कंडक्टर। सी आई कैन सी, देखो इस सेपरेटर्स में मैंने दोनों फ्री एंड्स छोड़े हुए हैं, उनके बीच में एयर जो है वो इजीली पास कर रही है, बट स्टिल द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। Then that means the air is a poor conductor of electricity at this point. But similarly, if I take the example of the air, the lightning process that happens in the air, ठीक है,
तो लाइटनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स है, करंट है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि उस पॉइंट पे जो एयर है वो कहेगी कि मैंने कंडक्ट नहीं करवाना है, नो, एट दैट पॉइंट द एयर इट बिकम्स कंडक्टिंग। ओके, सो इन द लाइटनिंग प्रोसेस, जब लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स जो प्रोड्यूस होते हैं, एट दैट टाइम द एयर इट बिकम्स गुड कंडक्टर। Okay, so it all depends on the ability of a substance, whether that substance is able to conduct the electric current or not. Is this clear, beta? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। हाँ जी, एनी डाउट टू एनीवन? क्लियर है? ओनली वन स्टूडेंट? रेस्ट स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं बेटा? ओके, चलिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने पढ़ ली है, वेदर द सब्सटेंसेस कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, या बिल्कुल ही नहीं कंडक्ट करेगा तो वो इंसुलेटर की फॉर्म में चला जाएगा। ओके, नाउ इन दिस कंटेक्स्ट देयर आर मेनी ऑफ द लिक्विड्स। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ लिक्विड्स व्हिच कैन एक्चुअली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। So the liquids, they can conduct electric current through them, right? तो उन liquids को हम क्या कह देते हैं? These liquids, they will be showing the property of electrical conductivity. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एयर की एग्जांपल ली है, गैस की, तो हम सिमिलरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो किस में शो कर सकते हैं? लिक्विड्स में. That will allow the substances to pass the electric current through them. Okay. Now let's take an example. See, whenever I talk about the liquids में specifically हम example ले लेते हैं water की. चलिए, let's take the example of water here. Like हमने air की example ली है for the gaseous one. We can take the example of water for the liquid state. ठीक है, अब मैंने एक distilled water लिया है. I have taken distilled water, and you know, in case of distilled water, it is actually devoid of any of the ions. आपको पता है कि जो आप डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हो उसमें जो भी आयंस या सॉल्ट्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं. You know this thing? Whenever the water is distilled, in this case the ions, they are removed. You know this thing? The salts, the ions, they are actually removed from the distilled water. Okay, तो अब सेम apparatus लेते हैं हम यहाँ पर. I'll be taking the same apparatus here. So let's take water in a beaker. ठीक है, and here is my apparatus comprising of bulb, battery or cell, and here are the two terminals of it. तो यहाँ पर मैंने ये दो टर्मिनल्स जो हैं वो क्या किए हैं? शो. ओके, राइट. तो जो फ्री एंड्स जो थे वो मैंने किस में डिप कर दिए हैं? बीकर में. and the beaker is containing water, that is distilled water, right? Now what you will observe? क्या लगता है आपको, क्या ऑब्जर्व करोगे आप? when the circuit is complete, now what you will be observing? Yes, the bulb will glow or not? क्या लगता है आपको?
जो आपका बल्ब है, सपोज आई हैव कनेक्टेड द एलईडी बल्ब हेयर, ओके, तो अगर बहुत कम करंट भी जो है तो एलईडी ने तो फिर भी डिटेक्ट कर लेना है, राइट। सो व्हाट यू विल सी, यस तरन्या, डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर, ओके। नाउ सी, आई हैव यूज्ड द टर्म पुअर प्लस कंडक्टर, दैट मीन्स ऑर्डिनरी वाटर कैन कंडक्ट, अगर मैं सिंपल वाटर लेती हूँ तो वो कंडक्ट कर सकता है, ओके, बट इफ आई रिप्लेस्ड द वाटर विद द डिस्टिल्ड वाटर, then that water it becomes the poor conductor of electricity, okay। तो अब इस केस में आप देखोगे कि जो आपका distilled water है that is not able to conduct the electric current through it. Now why? I have already told you the reason, that the distilled water, it is devoid of any ions, any salt, any impurities. जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर वाटर होता है, जिसमें कोई भी सॉल्ट्स नहीं होते हैं, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, एंड देयर आर नो आयंस इन इट। हम पढ़ के आए ना, आयंस, कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां से हम क्या देख रहे हैं कि अगर किसी चीज ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी इंपॉर्टेंट है, कुछ इम्प्योरिटी, ठीक है, एनी ऑफ द इम्प्योरिटी शुड बी प्रेजेंट, कुछ आयंस होने चाहिए, आयंस वेदर दे कैन बी कैटायंस और एनायंस, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कुछ चीजें जो हैं उस पानी में होनी चाहिए, कुछ सॉल्ट्स। अब जब मैंने सॉल्ट बोला है तो आपके माइंड में, क्योंकि अभी आपको ज्यादा सॉल्ट्स तो पता नहीं है, सो इन योर माइंड यू शुड बी थिंकिंग ऑफ द नॉर्मल सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जो आप घर में भी यूज करते हो, नमक, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, ओके। तो अगर किसी सब्सटेंस ने कंडक्टिंग बनना है, if a substance needs to be conducting, then it should be having some of the impurities, there should be presence of some of the ions, or it should be having some of the salts present in it. Now all these things they will lead to the electrical conductivity of that substance, ठीक है जी। ये सारी चीजें जो हैं वो कंडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे डिस्टिल्ड वाटर में तो ये सारी चीजें नहीं है, इसीलिए हमारा जो वाटर है वो क्या बन जाता है, पुअर कंडक्टर बन जाता है। दैट्स व्हाई द वाटर इट बिकम्स द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अभी मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट इज अ मेजर ऑफ अ सब्सटेंस, हाउ मच करंट इट कैन फ्लो थ्रू इट, ओके। तो अगर कम फ्लो कर रहा है तो वो पुअर कंडक्टर, या बिल्कुल नहीं फ्लो कर पा रहा है उस पोजीशन पे तो वो पुअर कंडक्टर हो जाएगा। अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है या द सब्सटेंस इज एबल टू कंडक्ट दैट, इट विल बी बिकमिंग अ गुड कंडक्टर, ओके। तो यहाँ पर हमें तो पता है कि वाटर जो है वो एज इट इज कंडक्टिंग है, वाटर इज कंडक्टिंग, दैट्स वाई हम आपको कहते हैं कि कभी भी वेट हैंड से जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उनको नहीं हाथ लगाना, right? You should not be touching the electrical circuits with the wet hands. Why? You know this thing that the water is conducting, okay? But in this case, if I have taken the distilled water, अगर मैंने distilled water लिया है, तो that actually become a non-conducting or a poor conductor of electricity, okay? So water in this case, it becomes a poor conductor.